सो लास्ट क्लास में हम ये देख रहे थे ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, यस और नो? सो कंटिन्यू करेंगे आगे। सो लास्ट क्लास में हम देखे कि इफ यू हैव ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मान लीजिए आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इंटीग्रेशन a to b f of x dx. What does this represent? This represents the area between the graph and x-axis between points A and B. सही है क्या नहीं? रेस्पॉन्ड करिए, समझ में आया? मतलब सुनाई दे रहे सबको? Yes, sir. And we have also seen the formula by which we can find the area. Formula क्या है? Integration a to b f of x dx is what? Integration a to b f of x dx is nothing but limit h tends to 0 and n tends to infinity है सर? Yes. h times f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h plus so on up to f of a plus n minus 1 into h. समझ में आ रहा है? So Yes, sir. this is called definite integration as a limit of sum. Clear है? ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है? सो आपको जो बोर्ड में what will be asked is you will be given some integral, some definite integral, you will be asked to evaluate it as a limit of sum. समझ में आ रहा है? जैसे डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल वाला टॉपिक जो है, मतलब सिमिलर टॉपिक है, समझ में आ रहा है? So let us try to solve some questions based on definite integration as a limit of sum. For example, ये क्वेश्चन है, integration 0 to 5 x plus 1 dx. You have to solve it or find the value using the concept of a limit of sum. Okay, clear? So इस क्वेश्चन में what is f of x? f of x is x plus 1 है सर? a is equal to 0, b is equal to 5. सही है क्या? So this implies nh is equal to 5 minus 0, which is equal to 5. Yes or no? Yes. What is the relation between n and h? n and h का बीच में relation है, n into h is equal to b minus a. Clear है? So these are the parameters correspond to this question. So integration 0 to 5 x plus 1 dx is equal to limit h tends to 0 and n tends to infinity h times, okay, क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट f of a है ना, ये सर? f of a is f of 0 plus f of a plus h. 0 plus h कितना है? h, ऐसा ना? Plus f of 2h plus f of
3h plus so on up to f of a plus n minus 1 into h, ऐसा ना? तो a तो 0 है, so n minus 1 into h हो जाएगा, ऐसा ना? So that is equal to limit h tends to 0 and n tends to infinity. Okay. So h times what is f of 0? देखिए f of 0 कितना है? f of 0 का मतलब f of x is x plus 1 है ना? f of 0 is 0 plus 1, ऐसा ना? Plus f of h is h plus 1, okay? 2h is 2h plus 1 plus 3h plus 1, okay? Plus so on up to n minus 1 into h plus 1, okay? Clear? Yes. Now Yes, you sir. have to add all these terms. अब यहाँ हम sequence and series का application करेंगे. We'll apply the concepts of summation of series, okay? Which is equal to limit h tends to 0 and n tends to infinity. H times, देखिए, if you look at the first terms, 0 plus h plus 2h plus 3h plus so on up to n minus 1 into h. So अगर एक h common लिया तो आपको 0 plus 1 plus 2 plus so on up to n minus 1 ऐसा ना? The sum of the first n minus 1 numbers, 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n minus 1 ऐसा ना? फॉर्मूला याद है? Yes. अगर n तक ऐड करना है तो n into n plus 1 by 2 करना है. n minus 1 तक ऐड करना है तो n minus 1 into n by 2, okay? Clear? Plus ये ones देखिए, 1 1 1 1 1. There are n terms. n ones को ऐड किया तो n आएगा, है सर? So which is equal to, अब लगभग हमारा क्वेश्चन मतलब लास्ट स्टेज में आ गया एक बार समेशन होने के बाद. So देखिए h इंटू ये nh को क्या लिख सकता हूं मैं? n इंटू h को 5 लिख सकता हूं. h इंटू 5 इंटू n माइनस 1 बाई 2, ओके? प्लस ये n इंटू h कितना है? अगेन n इंटू h इज 5, ऐसा ना? सो दैट इज इक्वल टू, देखिए अब ये h को मैं 5 by n लिख सकता हूं. कैन आई राइट h as 5 by n, ऐसा ना? So limit, now I am completely converting this limit in terms of n. मैं h को एलिमिनेट कर लेता हूं. So सिर्फ n tends to infinity लिख रहा हूं इस बार. So h के प्लेस में 5 by n लिख सकता हूं. So क्या होगा? 25 by 2 n minus 1 by n, है सर? प्लस 5 तो बाहर आ जाएगा ना, बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट. लिमिट के बाहर आ जाएगा, ऐसा ना? 25 by 2 is a constant. As n tends to infinity, n minus 1 by n. N tends to infinity, only the highest power matters, ऐसा ना? Yes, Only sir. the highest power matters. So न्यूमरेटर में भी हाईएस्ट पावर n पावर 1 है, नीचे भी n पावर 1 है. So n minus 1 by n का लिमिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ऐसा ना? Yes. With respect to n, 1 can be neglected. So आंसर क्या है? 25 by 2 plus 5, ऐसा ना? Which is equal to 35 by 2, okay? Clear? समझ में आया नहीं? Yes. सो आप डायरेक्टली भी इसका वैल्यू फाइंड करके देख सकते हैं. एग्जैक्टली यही नंबर आ रही है सर. एक बार देखिए, x का इंटीग्रेशन क्या है? x स्क्वायर बाय 2, सो 25 by 2 आएगा. 0 to 5, 1 का x विच इज 5. देखिए 25 by 2 plus 5, सेम आंसर आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं.
ओके, इंटीग्रेशन 1 to 3 x square plus x dx. ओके, इस क्वेश्चन में व्हाट इज f of x? f of x क्या है इस क्वेश्चन का? x square plus x है और and a is equal to 1, b is equal to 3. Okay, so what is nh? nh is equal to what? 2. nh is equal to b minus a, yes or no? 2. Okay, क्या नहीं? So these are the parameters of this question. इसके बाद सेम फॉर्मूला, कुछ डिफरेंट करने का जरूरत नहीं है. सो इंटीग्रेशन 1 to 3 x square plus x dx is equal to क्या है? लिमिट h tends to 0 n tends to infinity. ओके, h times फर्स्ट f of कहां से स्टार्ट करना है? f of 1, ऐसा नो. f of 1 क्या है? 1 square plus 1, ऐसा नो. इसके बाद f of 1 plus h, सही है क्या नहीं? सो 1 plus h whole square plus 1 plus h, ऐसा नो. f of 1 plus h is 1 plus h whole square plus 1 plus h. ओके, इसके बाद f of 1 plus 2h, so 1 plus 2h का whole square plus 1 plus 2h. ओके, समझ में आ रहे टर्म्स कैसे आएगा इस बार? प्लस सो ऑन f of 1 plus n minus 1 into h. So 1 plus n minus 1 into h का whole square plus 1 plus n minus 1 into h. सही है क्या नहीं? ओके ना? Yes. समझ में आया? समझ में आ रहे? Yes. So let us try to add these down. सबको अगर ऐड किया तो देखिए, सो आप एक सिस्टमैटिक वे में ऐड करने के लिए कोशिश करिए. सो देखिए, मैं इजीनेस के लिए मैं एक लाइन में लिखता हूं. आई विल राइट इट वर्टिकली. ओके, सो फर्स्ट लेट अस ट्राई टू ऐड द स्क्वायर टर्म्स. ओके, फर्स्ट टर्म्स ऐड करने के लिए कोशिश करता हूं. फर्स्ट टर्म क्या है? 1 स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट 1 प्लस h होल स्क्वायर को 1 स्क्वायर प्लस 2h प्लस h स्क्वायर लिख सकता हूं, ऐसा नो. 1 प्लस 2h होल स्क्वायर क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4h स्क्वायर, ऐसा नो. इसके बाद अगर लिखा तो 1 प्लस 6h प्लस 9h स्क्वायर आएगा. 1 प्लस 3h होल स्क्वायर, ऐसा नो. Yes. 1 प्लस 4h होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 8h प्लस 16h स्क्वायर, ऐसा नो. So on, last term is 1 square plus 2 times n minus 1 into h plus n minus 1 into n minus 1 whole square into h square. Okay, yes or no? These are the sums of the first terms. Okay, इसके बाद second terms में देखिए 1 plus h, 1 plus 2h, 1 plus 3h, 1 plus 4h, so on 1 plus n minus 1 into h. Okay, समझ में आ रहे? Now let us try to add these terms. देखिए, आपको ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो n है, ऐसा ना? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n. सो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर सब कुछ ऐड किया तो कितना आएगा? n आएगा, ऐसा ना? प्लस यहां देखिए सेकंड कॉलम को ऐड किया तो आप ध्यान से देखा तो 2h कॉमन ले सकते हैं, ऐसा ना?
अगर 2h कॉमन लिया तो दिस विल टर्न आउट टू बी 1 + 2 + 3 + 4 + so on up to n-1, ऐसा ना? Yes. So n-1 into n by 2, ऐसा ना? into 2h. एंड तीसरा कॉलम जो है h स्क्वायर कॉमन लिया तो दिस इज 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर अप टू n-1 होल स्क्वायर. इसका फॉर्मूला क्या है? n into n minus 1, n into मतलब अगर n स्क्वायर तक अगर ऐड करना है आपको n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 ऐसा ना, बट अभी हाँ, n minus 1 होल स्क्वायर तक करना है. सो n minus 1 into n into 2n minus 1 by 6 आएगा ऐसा ना. नॉर्मल फॉर्मूला है n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. ये नॉर्मल फॉर्मूला है. इस फॉर्मूला में n के प्लेस में आप n minus 1 पुट करना है ऐसा ना. सो n minus 1 into n into 2n minus 1 by 6 हो जाएगा. क्लियर है? एंड इस तरफ 1 1 1 ऐड किया तो n आएगा ऐसा ना. इसके बाद h टाइम्स अगेन 1 + 2 + 3 + so on कितना होगा? n minus 1 into n by 2. क्लियर है ये? ओके. यहां तक क्लियर? yes. सारा सम्स जो है वो अलग से अच्छे से करना पड़ेगा. So once you did all these sums, मैं क्या करूंगा फर्स्ट जो फर्स्ट स्टेप्स जो है वो मैं रब कर रहा हूं. ठीक है? I'll just continue this. So अभी हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज आवर इंटीग्रेशन? So integration 1 to 3 x square plus x dx is equal to so limit n tends to infinity h tends to 0 h times नीचे जो भी टर्म्स है सारा ऐड करना है सर ना. सो कितना n से देखिए यहाँ n टोटल मिलकर 2n हो जाएगा सर ना. दिस टर्म मिलकर 2n हो जाएगा सर ना. इसके बाद n into n minus 1 by 2 n into n minus 1 by 2 अगर कॉमन लिया थे दोनों में, यह 2h और यह h पूरा मिलकर 3h हो जाएगा. प्लस h स्क्वायर टाइम्स n into n minus 1 into 2n minus 1 by 6. ओके, क्लियर है? सो अब लगभग मेरा समेशन का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया. जस्ट यू हैव टू एवेल्युएट द नंबर्स. ओके, सो नीचे वाला भी मैं निकाल दे रहा हूं. ओके, सो दैट इज इक्वल टू लिमिट n tends to infinity h tends to 0. ओके, सो 2 times nh है सर. सर ब्रैकेट के बाहर h कैसे है? क्या है बेटा? सर ब्रैकेट के बाहर h कैसे है? ब्रैकेट के बाहर सर h 2n minus 1 by 6. सर ब्रैकेट के पूरा बाद होल ब्रैकेट. जो है वो फॉर्मूला में है ना. ये जो नंबर्स है सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाला, फॉर्मूला के बाहर एक h है ना. ठीक है? सो 2nh, nh का वैल्यू कितना है? 2 है ना. सो 2nh कितना होगा? 4 ऐसा ना. Yes. प्लस देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ एक n है एक h है, ये दोनों n into h कितना हो जाएगा? 2. और ये 2 कैंसिल हो जाएगा.
So 3h into n minus 1 है सर नो प्लस देखिए h स्क्वायर इंटू n सो एक n और एक h मिलके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सो 2h इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 बाई 6 समझ में आ रहा है कि नहीं h स्क्वायर इंटू n एक h एक n मिलके कितना हो जाएगा एक n और एक h जो है वो कैंसिल होके आपको 2 हो जाएगा क्लियर है सो नाउ वी हैव कम टू द लास्ट स्टेजेस आपको क्या करना पड़ेगा अभी यू हैव टू सो n इंटू h इज इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला है वो आपको यूज करना पड़ेगा देखिए h के प्लेस में आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2n कितना 2n सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सर नो yes तो सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए so the answer is 4 plus limit n tends to infinity 6 into n minus 1 by n plus यहाँ 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 1/3 टाइम्स 1/3 टाइम्स यहाँ h स्क्वायर होगा सॉरी बाहर एक h है ना बाहर एक h अंदर एक h सो 4/n स्क्वायर इंटू n minus 1 इंटू 2n minus 1 ऐसा नो क्लियर है Yes, sir. so as n tends to infinity only the highest power matters ऐसा नो अगर वो लॉजिक यूज किया तो ये 4 हो जाएगा देखिए n minus 1 इंटू n कैंसिल होके 1 हो जाएगा सो यहाँ 6 आएगा यहाँ देखिए ऊपर हाईएस्ट पावर ऑफ n मल्टीप्लाई किया तो 2n स्क्वायर आ रहे हैं ऐसा नो 2n स्क्वायर बाय n स्क्वायर ऊपर एक 2 बच रहे हैं सो कितना आएगा 8/3 आ रहे हैं ऐसा नो ऊपर n का हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाई किया तो 2n स्क्वायर नीचे n स्क्वायर कैंसिल होके एक 2 बचेगा ऊपर सो द आंसर इज सिंपली 10 प्लस 8/3 which is equal to 38/3 is the answer okay yes is it clear एक बार आप डायरेक्टली करके भी देख सकते हैं x³/3 प्लस x²/2 डायरेक्ट इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 के बीच में सो 1/3 टाइम्स 3³ माइनस 1³ 26 आएगा प्लस 1/2 टाइम्स 3² माइनस 1² 8 आएगा सो 4 प्लस 26/3 देखिए 38/3 सेम आंसर आया देखिए क्लियर आगे जा सकता हूं yes next evaluate integration -1 to 1 e power x dx as limit of sums again इस क्वेश्चन में e power x is my f of x yes or no and a is equal to -1 b is equal to +1 hence nh is equal to 2 होगा sir no b minus a nh is equal to 2 yes yes so integration -1 to 1 e power x dx is equal to limit h tends to 0 and n tends to infinity h times f of a कितना है f of a का मतलब f of -1 so e power -1 होगा plus f of a plus h -1 plus h so -1 plus h plus e power -1 plus 2h plus e power -1 plus 3h plus so on up to e power -1 plus n -1 into
h. ओके, क्लियर है? समझ आ रहे? हाँ सर। So that is equal to limit h tends to 0 n tends to infinity h times. So सब में e power -1 कॉमन ले सकता हूं? हाँ सर। e power -1 कॉमन ले तो 1 plus e power h plus e power 2h plus e power 3h plus so on up to e power n-1 into h होगा? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। So अब इसका समेशन जो है, प्रीवियसली वी हैव यूज्ड डिफरेंट समेशन, इस बार कौन सा समेशन है? जीपी का समेशन है सर नो? दीज टर्म्स आर इन जीपी, कॉमन रेशियो e power h, राइट? यस सर। लिमिट h टेंड्स टू 0 n टेंड्स टू इंफिनिटी. सो h अगर लिया तो what is the sum of this infinite gp? a into a का मतलब 1 फर्स्ट टर्म into r power n. r is common ratio e power h power number of terms, n is the number of terms, yes or no? a into r power n minus 1 by r minus 1, yes or no? Clear? यस सर। So which is equal to 1 by e times limit. आप मैं इसमें आई एम ट्राइंग टू एलिमिनेट n दिस टाइम. पिछले दोनों क्वेश्चंस में h को एलिमिनेट किया मैंने, इस बार मैं h टेंड्स टू 0, सो h टाइम्स, देखिए e पावर n इंटू h हो गया, nh कितना है? 2 है ना? सो e स्क्वायर -1 हो गया बाई e पावर h -1. समझ में आ रहा है? Yes. अब यहाँ कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स याद आ रहे? लिमिट h टेंड्स टू 0 e पावर h -1 बाई h कितना होता है? उसका आंसर 1 होता है. So h by e power h minus 1 भी 1 होना चाहिए, ऐसा ना? So the answer is e square minus 1 by e. क्लियर है? और e minus 1 by e. क्लियर है क्या? So ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं? फाइंडिंग इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम बहुत सिंपल है. फर्स्ट आपको फॉर्मूला याद करके फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, उसके बाद समेशन. आपका सीक्वेंस सीरीज का कुछ ना कुछ समेशन यूज होना चाहिए. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं. So next question क्या है? इंटीग्रेशन a to b sin x dx from the first principles. ओके, so यहां देखिए, यहां एक
अलग फॉर्मूला यूज होगा इस क्वेश्चन में, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक समेशन का फॉर्मूला यूज होगा जो बहुत लोग को याद नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन में देखिए, इंटीग्रेशन a to b sin x dx is equal to limit h tends to 0 and tends to infinity h times, फर्स्ट टर्म क्या आएगा, साइन ऑफ a, यस और नो, इस बार a तो ये है, b तो b है, सो साइन a प्लस साइन ऑफ a प्लस h प्लस साइन ऑफ a प्लस 2h plus so on up to sin of a plus n minus 1 into h, yes or no? Yes. Yes, sir. Which is equal to limit h tends to 0 n tends to infinity h times। इसका फॉर्मूला कितने लोग को याद है? ये सीक्वेंस सीरीज का फॉर्मूला नहीं है, इज अ फॉर्मूला करस्पॉन्ड टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो अगर साइन के अंदर एंगल्स जो है वो अगर एपी में है तो एनी वन ऑफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, उसका आंसर क्या है? साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए प्लस सम डी प्लस साइन ऑफ ए प्लस 2d प्लस साइन ऑफ ए प्लस 3d plus so on up to sin of a plus n minus 1 into d। साइन के अंदर अगर एंगल्स एपी में है तो व्हाट इज द फॉर्मूला? किसी को याद है? Nice. किसी को याद नहीं है? So this question is based on that formula. So इसका फॉर्मूला है साइन ऑफ एन डी बाई 2 बाई साइन ऑफ डी बाई 2। ओके, ये नोट करके याद रख लीजिए, साइन ऑफ एन डी बाई 2 साइन ऑफ एन डी बाई 2 बाई साइन ऑफ डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बाई 2। फॉर्मूला क्लियर है? देखिए, मान लीजिए आपके पास n टर्म्स है, यह n माइनस 1 इंटू डी है ना, सो यहां एन डी बाई 2 बाई साइन डी बाई 2 आएगा एंड n माइनस 1 इंटू डी को एक बाई 2 एक्स्ट्रा आएगा। क्लियर है? सो व्हाट इज द आंसर हियर? ये तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला जैसा लग रहा है ना, जस्ट डी के प्लेस में क्या है, h, ऐसा ना। साइन ऑफ एन एच बाई 2 बाई साइन ऑफ n बाई 2 इंटू साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ a प्लस क्या आएगा, साइन ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h बाई 2। ओके, क्लियर है कि नहीं? इज इट ओके? Yes. सो समेशन तो हो गया, you just have to find the value of this limit। ये नीचे वाला फॉर्मूला आप नोट किया? नीचे फॉर्मूला नोट किया? रब करूं फॉर्मूला? Yes, sir.
Okay, so that is equal to limit h tends to 0. देखिए as h tends to 0 sin of nh by 2 by sin h by 2. टेक्निक क्या है ये लिमिट निकालने के लिए? by nh by 2 into nh by 2, ऐसा ना? इसका by h by 2 into h by 2 करना है, ऐसा ना? So sin nh by 2 by nh by 2 भी 1 हो जाएगा, sin h by 2 by h by 2 भी 1 हो जाएगा, h tends to 0, ऐसा ना? And यहाँ h by 2 cancel, okay? What is left out? n, ऐसा ना? And ये n और ये h मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? What is the product of n into h in this question? b minus a. b minus a कांस्टेंट है ना, वो बाहर चला जाएगा. अभी के लिए मैं लिमिट के अंदर रखता हूं, बट वो बाहर चला जाएगा. इंटू साइन ऑफ a प्लस ये क्या है? nh माइनस h, ऐसा ना? nh कितना है? b माइनस a माइनस h by 2. ओके और नॉट? क्लियर है? Yes, sir. एंड अभी आप ध्यान से देख लीजिए, द इंडिटरमिनेसी हैज बीन रिमूव्ड. देयर इज नो इंडिटरमिनेसी इन दिस क्वेश्चन नाउ. डिनोमिनेटर में कुछ जीरो नहीं आ रहे, देखिए. सो h इज इक्वल टू 0 यहां पुट कर सकता ना मैं. सो h इज इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आएगा? b माइनस a टाइम्स साइन ऑफ 2a प्लस b माइनस a प्लस b बाई 2 हो गया, ऐसा ना? क्लियर है ये? Yes. सारा कैलकुलेशन सही है हमारा? क्योंकि मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है. जो व्हाट इज द आंसर दैट शुड कम? क्या आंसर आना चाहिए? sin x का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस cos x, ऐसा ना? फ्रॉम a टू b. सो cos a माइनस cos b आना चाहिए आंसर, ऐसा ना? cos a minus cos b, what is the value of cos a minus cos b? cos a minus cos b का फॉर्मूला क्या है? 2 sin a plus b by 2. हाँ, cos c minus cos d is minus 2 sin c plus d by 2 into sin b minus c minus d by 2, ऐसा आना चाहिए ना? हाँ. सो sin a plus b by 2 आया. सो यहाँ कुछ गलती नहीं किया ना हम? हमने nh by 2 काट दिए. हाँ, NH क्या तो है? sin nh by 2 हमने काट दिए. सर sin nh तो हम लोग का 1 है ना? sin? ओके ओके, सर, second- ये nh जो है वो ओके 1 है ना? nh 0 पे नहीं जा रहा है ना? सॉरी, गलती हो गया ना? मतलब h by 2 तो है वो 0 पे जा रहे हैं, बट nh by 2 0 पे नहीं जा रहे ना, ऐसा ना? थोड़ा सा गलती कर लिया हम. दिख रहा है आपको? सो व्हाट इज द मिस्टेक हियर? देखिए यहाँ ये साइन nh by 2 जो है, सो nh इज इक्वल टू b माइनस ए है ना? सो डिवाइड बाय nh by 2 नहीं करना है. देखिए ये गलत है, ये भी गलत है. ओके, सो इंस्टेड ऑफ b माइनस ए आपको क्या आएगा? साइन ऑफ b माइनस ए बाई 2 आएगा, ऐसा ना? क्लियर है? साइन ऑफ nh by 2 है ना, nh तो b माइनस ए बाई 2, साइन ऑफ b माइनस ए बाई 2. ओके, एंड ये h by 2 से ऊपर नीचे किया, ये h और ये h कैंसिल हो गया, ये 2 जो है वो ऊपर चला गया. सो द आंसर इज 2 sin b minus a by 2 into sin of a plus b by 2. शायद अभी सेम आंसर आया, ऐसा ना? क्लियर?
समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अगर इंटीग्रेशन करना है तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक समेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये आपका आर एस अग्रवाल बुक में होगा, वो कोई भी बुक में ये सारा फॉर्मूलाज आपको मिल जाएगा। क्लियर है? एक बार याद रखना है फॉर्मूलाज। आगे जाएंगे। दिस इज अबाउट योर बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन आएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके जेई में कैसे क्वेश्चन आएगा देखिए। दिस इज अ सैंपल क्वेश्चन आस्क्ड इन जेई मेंस। देखिए जेई मेंस में रिवर्स क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। रिवर्स क्वेश्चन का मतलब है लिमिट को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहे? अब ध्यान से देखिए, आई विल चेंज द फॉर्मूला सच दैट वी कैन यूज दैट, ठीक है, इन जेई एग्जाम्स। सो देखिए इंटीग्रेशन a to b f of x dx is equal to limit h tends to 0 or n tends to infinity h times जो ब्रैकेट के अंदर जो पूरा समेशन है उसको मैं एक सिग्मा नोटेशन में लिख सकता हूं। ऐसे लिख सकता हूं। बस देखिए r इज इक्वल टू 0 पुट किया तो f ऑफ a आएगा, ऐसा ना। r इज इक्वल टू 1 पुट किया तो f ऑफ a प्लस h आएगा। r इक्वल टू 2 पुट किया तो f ऑफ a प्लस 2h आएगा, 3h 4h 5h अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये वाला फॉर्मूला ओके है? फर्स्ट ये समझ में आया नहीं? यस सर। यस। So this is the general formula for summation in sigma form. Okay. अब मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होते हैं, इसका सबकेस मोस्टली आपसे पूछा जाएगा। सबकेस का मतलब है इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x dx क्या होगा। व्हाट इज इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x dx? अब यहां से देख लीजिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, मैं पूरा n में कन्वर्ट करूंगा फाइनली। h के प्लेस में आप क्या लिख सकते हैं? अगर 0 to 1 है तो nh इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, ऐसा ना। तो h के प्लेस में 1 by n लिख सकता हूं। सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n minus 1 f ऑफ a के प्लेस में 0, ऐसा ना। a इज 0, h के प्लेस में आप क्या लिख सकते हैं? 1 by n, सो f ऑफ r by n हो जाएगा। समझ में आया मैनिपुलेशन? हाँ सर। समझ में आया? a तो 0 है एंड r h इज 1 by n, सो r by n हो जाएगा। So this is the formula which is most often used, ठीक है, सबसे इजी वाला केस, that is the most often used model। समझ में आया? यस सर। अब ध्यान दे दीजिए, अभी इसमें आप चेंजेस कैसे सोच सकते हैं। Now मान लीजिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n f of r by n आया, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन को सिग्मा नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद ये वाला आया। नॉर्मली एग्जैक्टली हमारा फॉर्मूला की तरफ से n-1 होना चाहिए, ऐसा ना।
अगर n-1 के प्लेस में n है, इज इट ऑल्सो इक्वल टू 0 to 1 f of x dx? ये भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं सर, हाँ, नहीं होना नहीं होना चाहिए। चाहिए ना, ऐसा ना। बट आप थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व किया तो ये और ये एग्जैक्टली सेम होगा। क्यों? देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक टर्म, ऐसा ना। n-1 तक इसमें भी है, ऐसा ना। सो r इक्वल टू n वाला जो टर्म है वो एक्स्ट्रा है। r इक्वल टू n पुट किया तो क्या आएगा? f ऑफ n बाई n कितना? f ऑफ 1 आएगा, ऐसा ना। यस सर, f ऑफ 1 फाइनाइट है क्या या इनफाइनाइट है? यूजुअली फाइनाइट। फाइनाइट ही होगा। ये फाइनाइट नंबर को बाई n कर रहा हूं, n कहाँ जा रहे हैं? इंफिनिटी पे जा रहे हैं। सो जो एक्स्ट्रा टर्म का लिमिट क्या आएगा? 0। 0 आएगा। सो वैल्यू चेंज होगा लिमिट का। समझ में आ रहे? सो n के प्लेस में n-1 के प्लेस में n भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x dx। क्लियर है? समझ में आया? yes or no? Yes, sir. समझ में आया? अगर मान लीजिए n के प्लेस में n+1 है, तब भी इंटीग्रेशन इससे बराबर हो जाएगा, मतलब लिमिट विल बी इक्वल टू दिस, yes or no? देखिए, n के प्लेस में मान लीजिए n+1 है, एक टर्म एक्स्ट्रा के प्लेस में दो टर्म्स एक्स्ट्रा आया, yes or no? हाँ सर, बट अभी भी मतलब बयान तो कर रहे हैं ना आप, ऐसा ना, बयान तो हो रहा है ना। सो जब आप n से डिवाइड करिएगा, वो सारा एक्स्ट्रा टर्म्स जो है दैट विल नॉट ऐड टू द लिमिट, क्योंकि वो सारे टर्म्स का लिमिट 0 हो जाएगा ना। बाई इंफिनिटी कर रहे हैं आप, ऐसा ना। यस सर, सो ये चीज समझ में आ रही? मतलब r इक्वल टू 0 to n-1 एग्जैक्टली वही नंबर होने का जरूरत नहीं है। n-1 के प्लेस में n हो सकता है, n+1 हो सकता है, n+100 भी हो सकते हैं, हाँ सर, n+1000 भी हो सकते हैं। सिमिलरली r इक्वल टू 0 है ना, या r इक्वल टू 1 हो सकते हैं। इंस्टेड ऑफ 0 कैन r स्टार्ट फ्रॉम 1? कैन r स्टार्ट फ्रॉम 2 and r स्टार्ट फ्रॉम 3? द आंसर इज यस, क्योंकि जैसा यहाँ इनफाइनाइट मतलब कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अगर r बढ़ गया तो, ऐसा ना। बट उसका भी बयान ही है ना, उसको भी बयान कर रहे हैं आप। इसका मतलब लिमिट वाइज लिमिट विल नॉट चेंज। ओके, क्लियर है क्या? नहीं है? Yes. सर लेकिन ये तो हाँ, सर ये फॉर्मूला तो हमको एरिया देता था, तो एरिया बढ़ेगा नहीं अगर हम ज्यादा ज्यादा बढ़ाते रहेंगे, घटाएंगे? because you are dividing it into infinite number of parts, taking away finite number of parts will not change the answer. अब आंसर कब चेंज होगा वो मैं बोलता हूं। When will the answer change? यहां तक समझ में आया आपको? हाँ सर, अब अगर लिमिट n tends to infinity 1 by n sigma f of r by n, ओके, 0 to n के प्लेस में मान लीजिए 2n है। Now how many terms are you increasing? पहला n terms के आसपास आंसर 0 to 1 f of x dx है सर, नो? Now how many terms did you increase? You have increased infinite number of terms, है सर, नो? n tends to infinity है तो n और 2n के बीच में कितना डिफरेंस है? infinite number of terms, है सर, नो? Now this will cause a finite difference in the answer. समझ रहे?
देखिए बयन कर रहे हैं ना, बयन किया तो बहुत 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 छोटा नंबर आएगा, ऐसा ना। इफ यू ऐड फाइनाइट नंबर ऑफ इनफिनिटेसिमल नंबर्स यू विल गेट 0। कितना इनफिनिटेसिमल से ऐड किया तो एक फाइनाइट आंसर आ सकते हैं? ये समझ में आ रहे हैं? इनफिनिटेसिमल का मतलब क्या है? इनफिनिटेसिमल का मतलब क्या है? बहुत 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 छोटा, ऐसा ना। इनफाइनाइटली स्मॉल, ऐसा ना। yes. सो अगर 100 इनफिनिटेसिमली स्मॉल नंबर्स को ऐड किया तो वो जो सम होगा विल इट बी इनफिनिटेसिमल और नॉन इनफिनिटेसिमल? इनफिनिटेसिमल ही होगा ना, क्योंकि नंबर वाइज वो बहुत छोटा है ना। बट इफ यू ऐड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफिनिटेसिमल्स तब आंसर अभी भी इनफिनिटेसिमल होगा या फाइनाइट हो सकते हैं? फाइनाइट सर। ये समझ में आ रहा है डिफरेंस? हाँ So when you write 0 to 2n, you are increasing the number of terms by infinite extra, ऐसा ना। तब आपको एक फाइनाइटली डिफरेंट आंसर आ सकते हैं। क्लियर है क्या नहीं? सो n के प्लेस में मान लीजिए 2n है, उसका आंसर होगा 0 to 2 f of x dx। समझ में आ रहा है? ये नेक्स्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? अगर अपर लिमिट n के जगह k टाइम्स n है तो, अगर यह n के जगह k टाइम्स n है तो इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 टू k होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर और नॉट? 0 टू 1n है तो यहां इंटीग्रेशन 0 टू 1 आएगा। 0 टू 2n है तो इंटीग्रेशन 0 टू 2 आएगा। 0 टू 3n है तो इंटीग्रेशन 0 टू 3 आएगा। क्लियर है क्या नहीं? ओके। नेक्स्ट, अगर इंटीग्रेशन 2n से लेके 5n तक है तो व्हाट विल बी द इंटीग्रल आंसर? ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा इसका आंसर? 2 से लेके 5 तक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? yes. Depending on where the sigma variable is going, सिग्मा वेरिएबल का जो लिमिट्स होता है ना नीचे और ऊपर, उसको देख के इंटीग्रेशन का लिमिट्स लगाना पड़ेगा। ओके, क्लियर है क्या नहीं? सो ये तीन फॉर्मूला नोट, ये दो फॉर्मूला नोट कर लीजिए। फर्स्ट इज दिस फॉर्मूला, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 to 1 r इक्वल टू 0 to n minus 1 इज 0 to n minus 1 जो है वो बेसिक फॉर्मूला है। ओके, मतलब n minus 1 के प्लेस में n हो सकता है, n plus 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, n plus 5 हो सकता है, so on, anything can happen। एंड लिमिट्स कब चेंज होगा? 0 to kn है तो। ओके, समझ में आ रही कि नहीं? सो सारा फॉर्मूला समझ में आया आपको? सो बेसिक फॉर्मूलाज क्या है? इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x dx is equal to limit n tends to infinity 1 by n sigma 0 to n minus 1 f of r by n। ओके है फर्स्ट फॉर्मूला। इंटीग्रेशन 0 to k f of x dx is equal to limit n tends to infinity 1 by n into sigma 0 to कहां तक? k f of r by n। ओके, a to b f of x dx is nothing but limit n tends to infinity 1 by n sigma a into bn लिख सकता हूं। समझ में आ रहे? क्लियर है क्या नहीं? नीचे मान लीजिए 2n, ऊपर मान लीजिए 5n है, सो इंटीग्रेशन 2 to 5 हो जाएगा। क्लियर है क्या नहीं? ओके, सो अगर ये तीन फॉर्मूलास
आपको पता है तो मोस्टली 99% ऑफ द क्वेश्चंस आप कर सकते हैं जो जेईई में पूछते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये नोट किया, Yes. फॉर्मूलास नोट किया। सो देखिए ये क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए ये 11th क्लास का लिमिट्स का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि 11th क्लास का लिमिट्स का कोई भी प्रोसेस अप्लाई करिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ओके सो देखिए इसको इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे करना है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू सम फॉर्म वेयर यू कैन यूज द फॉर्मूला। आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है वो पहला लिख लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा f ऑफ r बाय n, ऐसा नो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके सो एक 1/n बाहर करना है एंड जो भी फंक्शन है द फंक्शन शुड बी इन द टर्म्स ऑफ r बाय n, ओके सिग्मा का। सो देखिए इसमें क्वेश्चन में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर 1/n कॉमन लिया तो क्या बचेगा, व्हाट विल बी लेफ्ट आउट। 1/n कॉमन लिया तो 1/1 हो जाएगा, है सर नो। ओके प्लस 1/रूट ऑफ 1 प्लस 1/n प्लस 1/रूट ऑफ 1 प्लस 2/n, है सर नो। Yes. 1 प्लस n/n, ये समझ में आया। ये देखिए हाँ सर। हर एक स्क्वायर रूट से n बाहर किया तो ऐसा ही टर्म बचेगा ना। So if you express this in terms of sigma, sigma क्या होगा ये 1/रूट ऑफ 1 प्लस r बाय n होगा, r गोइंग फ्रॉम 0 to n, ऐसा नो। हाँ 1 को √1 बोल सकते हैं, देखिए r इक्वल टू 0 पुट किया तो 1/√1, r इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 प्लस 1/n 1 प्लस 2/n सो ऑन। ओके सो इज दिस अ फंक्शन ऑफ r बाय n, लिमिट का रेंज जो है 0 to n विच इज ओके, विच इज इक्वल टू आपका आंसर क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x होना चाहिए। f of x का मतलब है दिस इज f of r by n, so if this is f of r by n, what is f of x, r by n के प्लेस में x पुट करना है सर नो। सो क्या होगा 1/रूट ऑफ 1 प्लस x dx। ओके क्लियर है क्या नहीं। यस सर। सो हो गया आंसर, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का 1/√1 प्लस एक्स का आंसर क्या है, इंटीग्रेशन 2 रूट x है ना, 2 रूट 1 प्लस एक्स गोइंग फ्रॉम 0 to 1, सो 2 रूट 2 माइनस 2 इज द आंसर। क्लियर है। यस सर। सो स्टेप्स बहुत सिंपल है, यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट द गिवन समेशन टू सिग्मा फॉर्म। एक बार सिग्मा फॉर्म में कन्वर्ट करके आप जस्ट फॉर्मूला से, स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कंपेयर करना है, you'll get the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। सर एक हाँ हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए सिंपल है, जस्ट आप इस क्वेश्चन को सिग्मा फॉर्म में लिखने के लिए कोशिश करिए। इस बार इंटीग्रेशन 0 to 1 नहीं आएगा, फॉर योर हिंट है। देखिए इंटीग्रेशन 0 to क्या आएगा,
सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n अगर कॉमन लेते हैं तो आपको आएगा 1/1 + 1/n 1/1 + 2/n so on up to 1/1 प्लस शायद 4n/n आएगा, ऐसा नो 5n जो है n + 4n है ना, 4n + n है. So which is equal to limit n tends to infinity 1/n times sigma r is equal to 1 to 4n हो रहा है. इस बार दिख रहा है आपको 1/1 plus r/n. समझ में आया यहां तक? So this is equal to integration कहां से कहां तक? इंटीग्रेशन 0 to 4 1/1 plus x dx. ओके, r/n के प्लेस में x पुट करना है. That is equal to ln 1 plus x going from 0 to 4. ln 4 is the answer. इजी लग रहा है? इजी लगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ. Yes, sir. ये वाला अपने से करना है. So we'll continue this in the next class. Okay. यहाँ तक. इसके बाद 1-2 टॉपिक बचा है, बाकी मतलब रेगुलर सिलेबस तो हो गया. ठीक है, जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो कवर करके विल कंक्लूड दिस टॉपिक. क्लियर? Yes, sir. Yes.